Oh yeah, mine is very voice. I don't know. Okay, welcome everyone to this week's sessions. और इस हफ्ते के सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। I hope that this will be a beneficial, useful course for you. और मैं आशा करती हूं कि ये हफ्ते का जो अध्ययन है आप सभी के लिए बहुत लाभदायक और इस्तेमाल योग्य विषय होगा। The important thing about our classes is if the Lord is there speaking to us, then it is useful. और देखिए हमारी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, यदि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है तो बहुत फायदेमंद है। It's nice to listen to the teacher, और शिक्षक को सुनना बहुत अच्छा है, but you need to also be able to hear from the Lord. और लेकिन आपको उसके साथ परमेश्वर की आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है। So I would like one of us to open with a word of prayer. Anyone among the students. और हम चाहेंगे कि हमारे छात्रों में से कोई भी एक जन उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। You can take the mic. You can pray in Hindi or English. और आप माइक्रोफोन लें, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिसमें भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं भाषा में आप प्रार्थना करें। Ask the Lord that He will be there in our class with us. और प्रभु से ये विनती करें कि परमेश्वर हमारे साथ में आप पूरी क्लास में बने रहें। Ask Him to open our ears so that we will hear from Him. और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। If anyone can, just take the mic and pray for us. It can be one of the men or it can be one of the women. और कोई भी माइक्रोफोन उठाकर, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप मतलब लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आप कोई भी आप माइक्रोफोन उठा के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी से। Heavenly Father, we thank you for this glorious morning, God. God, we thank you for whatever you did in our lives. Thank you for the day till from the beginning you have brought us till now. God, we thank you for all the teachings what you have given us. God, this is the starting of the week. God, may your presence be on us. May you build our words. By your word, may we be encouraged and we follow you. May we follow your words and may we move on your words, God. Heavenly Father, from this day on, whatever they teach, whatever you speak through them, God, may it touch our hearts, may it touch our souls, and may we know you in depth, God. Heavenly Father, open our hearts, God, a river of flow in our hearts. Let our hearts be open within you, God. God, may we know who you are, who actually you are, what you can do in our lives. Heavenly Father, thank you for the day till now you brought us. God, in this concept, whatever they teach from today on, God, let us all understand in depth. Let us concentrate in class. Make our mind free. God, please pour out your spirit in us. Whatever they teach in the classes, may we use in our daily lives. Heavenly Father, thank you for everything. God, in this glorious morning, we pray you that you be with us. God, you guide us. You do all the things, whatever as your will, God. Heavenly Father, thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much. और बहुत धन्यवाद आपका। All right. So I will give you a brief introduction of this subject. और ये जो विषय हम जिसे अध्ययन करना चाह रहे हैं, इसका छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। And then I'll give you a few instructions for the class. और उसके बाद में हम अपनी क्लास के बारे में कुछ दिशा निर्देश आपको देंगे। After that, we will get into the actual subject matter. और उसके बाद में जो हमारा विषय है उसमें हम चलेंगे। Okay, so this week in the mornings for the next 5 days, we are looking at doctrinal foundations. और देखिए आज से अगले 5 दिन शुक्रवार तक हम जो हैं विधिवत ईश्वरीय ज्ञान के परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। The term that is used over there is foundation. और देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अगर उसे ठीक अनुवाद किया जाए तो वो है नींव। Exactly. So we'll use the example of a house. और हम एक घर का उदाहरण लेंगे। When you're building a house, do you start laying all the bricks on the ground and start construction work? क्या आप जब घर निर्माण करना शुरू करते हैं तो सीधा ईंटों को जमीन पर रखकर घर बनाना शुरू कर देते हैं? You first dig into the ground.
और सबसे पहले हम जमीन को खोदते हैं, We dig deep into the ground and then we start building foundation pillars. और देखिए हम गहराई में जमीन को खोदते हैं, उसके बाद में हम उस घर की नींव के खंभों को वहां डालते हैं। And then the house that we build will stand on these pillars. और उसके बाद में जिस घर का निर्माण हम करने जा रहे होते हैं वो इस नींव के खंभों के ऊपर में स्थिर रहता है। And then once the house is ready, you have the housewarming ceremony. और देखिए जब आपका घर तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश की सभा आपके यहाँ होती है। All your friends and relatives will come to the house and say, what a beautiful house you have built. और आपके सारे रिश्तेदार मित्रगण आके कहते हैं कितना सुंदर आपने आलीशान घर को बनाया है। No one can see the foundation pillars which are there under the house. और कोई भी उन नींव के खंभों को नहीं देख पाता है जो जमीन के नीचे दबे हुए होते हैं। But your beautiful house is standing only because of those pillars. और लेकिन आपका जो सुंदर आलीशान घर है वो केवल उन्हीं खंभों के वजूद में खड़ा हुआ है। If there is an earthquake, that house will be able to stand. क्या अगर भूकंप आता है तो घर स्थिर रह पाएगा? If the foundations pillars are strong, then the house will be fine. और यदि नींव के खंभे मजबूत हैं तो घर खड़ा रह पाएगा। If the foundation pillars are weak, then the house is in great danger. और देखिए यदि वो नींव के खंभे कमजोर हैं तब घर जो है खतरे में है। Our Christian life is like that house, that beautiful house. और हमारा मसीह जीवन भी उसी आलीशान सुंदर घर के समान है। When everything is going well, people look at our life and say, oh, what a wonderful Christian. और देखिए जब जीवन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर मसीह जीवन जी रहे हैं। But if those foundation pillars are weak, लेकिन यदि हमारी नींव के खंभे कमजोर हैं, then our Christian faith will be shaken in times of difficulty. और मुश्किल समय में हमारा मसीह विश्वास जो है वो हिल जाएगा, गिर जाएगा। People come to us and they will ask us all kinds of questions. और लोग आकर हमारे पास में हर प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। They will say, your Bible is written by people, right? और वो आके कहेंगे आपकी बाइबल जो है ना वो लोगों के द्वारा लिखी गई है ना। Why do you say that God wrote the Bible? और आप क्यों कहते हैं कि परमेश्वर ने इसे लिखा है? Moses wrote it, Joshua wrote it. और मूसा ने लिखा है, यहोशू ने लिखा है। So why are you saying that God wrote the Bible? और आप क्यों कहते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है? And then they may come to you and they may say, in the Bible Jesus said, और हो सकता है वो आके कहें कि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, Father and I are one. मैं और पिता एक हैं। That means you have two gods. और इसका मतलब है कि आपके पास दो ईश्वर हैं। Why are you saying that you have only one God? और आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवल एक परमेश्वर को आप मानते हैं? There are so many questions which people will put to us about our Christian faith. और बहुत सारे प्रश्न लोग हमारे जीवन के अंदर में हमारे विश्वास के आधार पर हम पर डालेंगे। They will say, I know what sin you were committing last week. और वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता है पिछले हफ्ते तुमने क्या पाप किया था। How do you know you still have your salvation? और कैसे आप कह सकते हो कि अभी उद्धार बना हुआ है? Maybe you lost your salvation. और हो सकता है तुम्हारा उद्धार गुम हो गया होगा। When these questions are asked, you need to have a strong foundation. और जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं तब हमारी मसीह जीवन की नींव मजबूत होनी चाहिए। And that is why we are doing this topic. और यही कारण है कि इस विषय के ऊपर में हम अध्ययन करने वाले हैं। We will be discussing 10 foundation pillars of our faith. और हम यहाँ अपने विश्वास के 10 नींव या विश्वास के खंभों के बारे में हम पढ़ेंगे। All right, so now just some basic instructions for our class. और हमारी क्लास के लिए कुछ आधारभूत निर्देश हम देना चाहते हैं। I will be talking and talking continuously. और निरंतर मैं बोलती रहूंगी। So you have to put up your hand if you have a question. और तो यदि आपके पास में प्रश्न है तो कृपया कर अपने हाथ को उठाएं।
Okay, so don't wait for this lady to stop talking. और आप इंतजार मत करिएगा कि ये महिला शांत हो जाए, I will not keep quiet. और ये महिला शांत नहीं होगी, I will not know that you have a doubt. और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम लोग को कोई सवाल आ भी रहा है। So when you get the doubt in your mind about something that we are discussing, और जिस बात के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं और आपको कुछ मन में सवाल आता है, शंका आती है, please put up your hand immediately. और तुरंत अपने हाथ पे कष्ट करके उठा दीजिएगा। Okay, and sometimes I'll be talking so much I will not even see your hand. और कई बार ऐसा होगा कि मैं इतना बातों में मशरूफ होंगी कि मैं आपके हाथ को भी नजरअंदाज कर दूं। So the other students who can see, they please, you would say, ma'am, someone is holding up their hand. Please, address the question. और आप में से जो आजू बाजू वाले बैठे हैं वो आप लोग कह सकते हैं, अरे मैडम वो कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे। Because some people at the end of the class, they feel very sad. और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद बहुत बुरा महसूस करते हैं। They think I had so many questions. This lady didn't even give me a chance to ask. और कई सारे लोग होते हैं बाद में रूम पे भी जाके सोचते हैं, अरे इतने सारे प्रश्न थे लेकिन मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि इन्होंने मौका नहीं दिया। So you have full freedom to put up your hand. आप लोग आजाद हैं अपने हाथ को उठाने के लिए। It is good to listen to a lecture, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से सुने, but it is so important that your doubts should be cleared. और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आपके मन में जो शंका सवाल है वो स्पष्ट आपको उसका उत्तर मिलना चाहिए। If I know the answer to your question, I will give you the answer immediately. और यदि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो मैं तुरंत उसको दे दूंगी। If I do not know the answer, I will go find out and I can give you the answer next day. और यदि मुझे नहीं पता होगा, घर जाऊंगी, आपका उत्तर ढूंढूंगी, अगले दिन आके आपको उत्तर दे दूंगी। So please feel very confident, very free to ask your questions. तो कृपया करके निवेदन है आप सभी से, हियावी महसूस करिए, प्रश्न करिए, सवाल पूछिए। Okay, and ठीक है। the same goes for the online students. और जो ऑनलाइन छात्र हैं आपके लिए भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। A very warm welcome to all of you as well. और उसके साथ साथ आप सभी का भी बहुत तहे दिल से स्वागत है। Now, if you would like, you can put your questions in the chat section. और आपके पास कोई प्रश्न है तो जो चैट सेक्शन है उसमें आप अपने प्रश्नों को लिखकर डाल सकते हैं। But if you don't want to type long sentences in the chat, और यदि आप लंबे लंबे वाक्य लिखना पसंद नहीं करते हैं, just unmute and say, ma'am, I have a question. और तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और सीधा पूछ सकते हैं कि मेरे पास सवाल है। So if I can hear your voice, immediately I will stop. I will be able to address your question. और यदि हम आपकी आवाज सुनेंगे तो तुरंत रुक कर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। Alright, so I have given my declaration. और देखिए मैंने अपनी घोषणा तो कर दी है। Now you're free to ask the questions. अभी आप आजाद हैं, थोड़ा नींद से बाहर आके प्रश्न करिएगा। Okay, so I did not say that. I did not mention anything about need. Okay, so yeah. बाकी आप समझदार हैं। So the very first doctrine that we are going to be looking at is the doctrine of the Word of God. और देखिए सबसे पहले जिस सिद्धांत के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन का सिद्धांत। You will see that only a few short notes are written in your notes on each topic. और आप देखेंगे कि हर विषय के ऊपर में आपके पास में जो नोट्स दिए गए उसमें थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है। It's not a detailed book about doctrinal foundations. और देखिए ये सिद्धांतों की नींव के ऊपर में पूरी रूपरेखा के साथ में कोई लिखी हुई किताब नहीं है ये। The reason is that these notes are based on an English book. और देखिए इसका कारण ये है कि ये जितने भी नोट्स हमारे लिए बनाए गए हैं ये सभी एक अंग्रेजी किताब के विषय में से निकाल कर लगाए गए हैं। So these notes are a short summary of that book. और ये जितने भी नोट्स हमारे हाथ में हैं वो एक बड़ी किताब के निचोड़ हमारे पास में हैं। So if any of you is comfortable with English, you can look at the English book.
और यदि आप अंग्रेजी में आरामदायक महसूस करते हैं तो कृपया कर अंग्रेजी की किताब को आप देख सकते हैं। It's very easily available in the internet. और इंटरनेट में बहुत आसानी से उपलब्ध है ये किताब। In Google search, you should type these words: और देखिए गूगल सर्च में आप ये शब्द अगर टाइप करेंगे systematic theology और सिस्टमैटिक थियोलॉजी अगर आप टाइप करते हैं by बाय Wayne Grudem. और वेन ग्रूडम उनका नाम है लेखक का, I will give you the spelling of his name. और उनके नाम की स्पेलिंग भी आपको दे दी जाएगी। Systematic theology by Wayne Grudem. सिस्टमैटिक थियोलॉजी बाय वेन ग्रूडम, Wayne. Okay, that's Wayne. Wayne. And then the second name, Grudem. So if you just simply type that in Google, you will have websites which are offering the PDF for free. So और देखिए अगर आप गूगल में अगर इसको गूगल सर्च में टाइप करते हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इसको पीडीएफ फॉर्म में मुफ्त में उपलब्ध कराता है। okay, so all the details will be in that book. और पूरा अच्छी रीति से लिखा हुआ उस किताब के अंदर में ये जो विषय है आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। So in the class, I will try to cover as much information as I can. और देखिए क्लास के अंदर में जितना ज्यादा मैं आपको सूचित कर सकूं इस विषय के बारे में, मेरा पूरा प्रयास होगा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। You will not be able to write down every detail. It's impossible. और देखिए आप हर एक बात को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये संभव ही नहीं है। Okay, so that is why nowadays we have videos of the lectures. और यही कारण है कि अभी हमारे जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके वीडियोस उपलब्ध होते हैं। Some important points which you want to write down, you can put it down in your notebook so that you'll remember. और देखिए कुछ विशेष बात आपको लगता है कि मुझे लिख लेनी चाहिए ताकि मुझे याद रहे, तो उस बात को आप लिख लीजिएगा। But all the details you will be able to get from the lecture video. और लेकिन सारे के सारा विवरण जो है बाद में आप इस लेक्चर के वीडियो को देखकर दोबारा से सुन और प्राप्त कर सकते हैं। So if you go to YouTube and if you type APC Hindi, और यदि आप YouTube में जाएं और वहां पर APC हिंदी टाइप करेंगे, you will be able to go into the APC Hindi channel. और तब आप APC हिंदी चैनल जो है वहां पहुंच जाएंगे। So today's classes will be posted over there. और आज जो भी हम पढ़ाया जा रहा है हमको, वो वहां पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। So all the lectures are there in the channel for free. और देखिए वो सारे अभी तक जितना भी हमने पाठ पढ़े हुए हैं सभी मुफ्त में APC हिंदी YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। So if you miss anything when we are covering our topic, और जब हम अपने विषयों को पढ़ रहे हैं और यदि आपसे कुछ रह जाता है, छूट जाता है, you can go to the video lecture and then look at that missing portion once again. और आप उधर वीडियो में YouTube में जाइए और उस वीडियो को देखिए और जो आपसे छूट गया था आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। Okay, so we will start now with the doctrine of the word of God. और आइए हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत से आरंभ करते हैं। पेज नंबर 7 पर है। So in the biblical times, the Israelites did a lot of writing work. और देखिए बाइबल के समय श्रेणी के अंदर में इजरायलियों ने बहुत ज्यादा लेखन का कार्य किया, लिखने का कार्य किया है। Some of the books which they wrote were not included in the Bible. और देखिए कुछ किताबें जो उन लोगों ने लिखी वो बाइबल में जोड़ी नहीं गई हैं। So the Israelites wrote books which were included in the Bible and also books which were just simply written for people's benefit. और देखिए इजरायलियों ने वो किताबें भी लिखी जो बाइबल में जोड़ी गई हैं और उन्होंने कुछ ऐसी किताबों को भी लिखा जो जोड़ी तो नहीं गई लेकिन लोगों के लाभ के लिए हैं। One example we find is in Joshua chapter 10 verse 13. और देखिए एक जो उदाहरण है वो हमें यहोशू 10 अध्याय उसके 13 वचन में मिलता है। If someone can read out for us Joshua 10:13. और यहोशू 10 उसका 13 कोई भी हमारे लिए पढ़ सकते हैं।
Okay, so here it's talking about the book of Yashar. और देखिए यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम याशार है, उसका वर्णन किया जा रहा है। In the Old Testament, do we have a book of Yashar? क्या पुराने नियम में याशार नामक कोई पुस्तक हमें मिलती है? No, right? No. नहीं। In the same way, let's look at another example. Numbers chapter 21, verse 14. और आइए एक और उदाहरण देखते हैं, गिनती 21 उसका 14। Numbers 21, 14, if someone can read out. और कोई भी 11 उसका 14 पढ़ सकते हैं। 21, और 14. 21 का 14, माफ कीजिएगा, गिनती 21 उसका 14। Yeah, that's what we just want the name of that book. और केवल हमें नाम चाहिए था। It says Book of the Wars of the Lord. और वहां लिखा यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक। In the Old Testament, do we have any book called Book of the Wars of the Lord? क्या पुराने नियम में हम कोई ऐसी किताब पाते हैं जिसका नाम यहोवा के संग्राम पुस्तक है? क्या मिलती है ऐसी कोई पुस्तक? No. So the Israelites wrote many books. और तो यह इजरायलियों ने बहुत सारी किताबों को लिखा है, But not all those books were included in the Old Testament. लेकिन सारी की सारी किताबों को पुराने नियम में सम्मिलित नहीं किया गया है। Only some very specific books were included in our Old Testament. और केवल कुछ ही किताबें हैं जो हमारे पुराने नियम की बाइबल के अंदर में जोड़ी गई हैं। The Holy Spirit inspired some particular people to write down certain things. और देखिए पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वो कुछ किताबों को लिखें। And so only those books which were inspired by the Holy Spirit, those books were included in the Old Testament. और केवल वही किताबें पुराने नियम में जोड़ी गई है जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लोगों से लिखवाई गई हैं। So on your page 8 of your notes, you will see the word canon. और देखिए अगर आप अपने नोट्स के 8वें पेज को खोलें तो वहां पे कैनन नामक एक शब्द आप सुनेंगे। That word canon is talking about Holy Scripture. और देखिए जो कैनन शब्द है वो पवित्र वचनों के बारे में है। So the book of Yashar is not canon. और यशार जो है वो जो पुस्तक है वो कैनन नहीं है। But book of Joshua is canon. और लेकिन जो यहोशू की पुस्तक है वो कैनन है। In the same way, the book of the wars of the Lord is not canon. और वैसे ही जो परमेश्वर यहोवा के संग्राम की पुस्तक है वो कैनन नहीं है। But the book of Kings and the book of Chronicles, that is canon. परंतु जो राजा, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, वो जो पुस्तकें हैं वो कैनन पुस्तक कहलाती है। So the canonical books are the books which were inspired by the Holy Spirit. और देखिए कैनन पुस्तकें वो पुस्तकें हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई पुस्तकें हैं। So these Jewish people, how did they decide we will put these books inside the Old Testament and these books we will not consider them as scripture? और देखिए यहूदी लोगों ने इस बात का निर्णय कैसे लिया कि इन किताबों को हम पुराने नियम में सम्मिलित करेंगे लेकिन इन किताबों को पुराने नियम से नहीं जोड़ेंगे। They decided that only writings by the prophets of God will be included. और उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि केवल वही किताबें जो परमेश्वर के नबियों के द्वारा या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं उन्हें ही पुराने नियम में जोड़ा जाएगा। So only the writings of the prophets of God will be considered canon. और केवल परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नबियों के द्वारा लिखी गई किताबों को ही कैनन के रूप में माना जाएगा। The books being written by the historians will not be canon. और जो किताबें इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हैं वो कैनन पुस्तकें नहीं मानी जाएंगी। Books which are written to write about the stories of their kings,
That is not canon. और वो किताबें जो उनके राजाओं के बारे में कहानियां कथाएं कहती हैं, उन्हें कैनन पुस्तक के रूप में नहीं माना जाएगा। The people whom God spoke to directly, face to face, they are the prophets. और केवल वही लोग जिनसे परमेश्वर ने स्वयं आमने सामने रहकर बात की है, वही लोग भविष्यवक्ता के रूप में माने जाएंगे। So Moses was a person with whom God communicated directly. और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर सीधे बातचीत किया करता था। So that is why God used Moses to write the first 5 books of the Old Testament. और यही कारण है कि परमेश्वर ने बाइबल की पहली 5 पुराने नियम की पुस्तकों को लिखने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। And then you have Joshua. Joshua also was asked to write some recordings of what God was saying. और उसके बाद में हमें यहोशू की पुस्तक आती है। परमेश्वर ने यहोशू को भी उन बातों को लिखने के लिए कहा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें मिलती हैं। In the same way, when we come to the later prophets, और उसके बाद ठीक वैसे ही जब हम बाद के भविष्यवक्ताओं के बाद पास में आते हैं, we see people like Isaiah and Jeremiah. और हम देखते हैं यशाया है, यर्मिया है। In Jeremiah chapter 30 verse 2, और यर्मिया 30 उसका दूसरा वचन, there the Lord says to him, write in a book all the words that I have spoken to you. और परमेश्वर यर्मिया को आज्ञा देता है कि वह उसके वचनों को लिखे। So these are the people who heard directly from God and they wrote down what God was telling them to write. और ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से सुना और उन्होंने उन बातों को जो सुना उन्हें किताब में लिख डाला। The last prophet who was hearing directly from God was Malachi. और देखिए अंतिम भविष्यवक्ता जिसने परमेश्वर की आवाज को सीधे सुना वो मलाकी था। He was living around 430 BC. और करीब 435 ईसा पूर्व वो रहता था। After the time of Malachi, God did not speak directly to any of the prophets. और देखिए मलाकी भविष्यवक्ता के बाद में परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता से सीधे बात नहीं किया है। Because the people of Israel had become more and more sinful as time passed. और जैसे जैसे समय गुजरता गया इजरायली लोग जो हैं और ज्यादा पापी होते चले गए। And God warned them, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दिया, if you continue to live in sin, I will stop speaking to you. और यदि आप इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। In Proverbs chapter 1, 28 to 30. और देखिए पहला नीति वचन पहला उसके 28 से 30। If someone can read out, और कोई भी पढ़ सकते हैं। Proverbs 1, 28 to 30. और नीति वचन पहला अध्याय उसका 28 से 30। And so for 400 years, there was nobody directly hearing from God and giving the message. और देखिए करीब 400 साल कोई नहीं था जो परमेश्वर से सीधा सुनकर उन्हें संदेश दे पाए। The next person who comes and starts speaking directly from God is John the Baptist. और देखिए वो अगला व्यक्ति केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता ही था जिसने परमेश्वर से सीधे सुनकर लोगों से बातें की। From the time that he was in his mother's womb, he was anointed with the Holy Spirit. और जब वो अपनी माँ के गर्भ में ही था तब ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अभिषेक पा लिया था। So he heard directly from the Holy Spirit and began to preach. और वो पवित्र आत्मा से सीधा सुनता था और उसी बातों का प्रचार करना उसने आरंभ किया। So in between the time of Malachi and John the Baptist, there were no people who were hearing directly from God and communicating the message. मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मध्य में कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ जिसने सीधा परमेश्वर से सुनकर लोगों तक संदेश पहुंचाया।
We are talking about this in great detail because of page 9 of your notes. और देखिए आपके नोट्स में पेज नंबर 9 पर जो लिखा है उन सारी बातों के बारे में बड़े खुलकर हम बातें कर रहे हैं। There is a word mentioned over there named apocrypha. और देखिए अपोक्रिफा करके एक शब्द वहां लिखा गया है। So we are giving all these details to understand what is this apocrypha. और हम ये सारा विवरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपोक्रिफा को समझ सकें इस शब्द के क्या अर्थ निकलता है। Now, if you are not in contact with anyone from the Catholic community, there is no problem. और यदि आप में से कोई भी कैथोलिक परिवार से नहीं आता है तो कोई बात नहीं। If you don't have any friends and relatives who are Catholics, then it's not a issue for you. और देखिए यदि आपके कोई मित्र या परिवार में कोई सदस्य अगर कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हैं तो कोई समस्या नहीं है। But if you have such friends, they will ask you, they will say, why is your faith different from our faith? और यदि आपके ऐसे कोई मित्र हैं तो वो जरूर आपसे सवाल कर सकते हैं, हमारे विश्वास में तुम्हारे विश्वास में भिन्नता क्यों है। So, because Christianity is basically has been divided into two groups. और क्योंकि अगर देखा जाए तो मसीहत जो है संसार भर में दो गुटों में बट गया है। You have the Catholics and you have the Protestants. और आप कैथोलिक्स को देखते हैं, प्रोटेस्टेंट को देखते हैं। The main difference between these two groups is that Catholics believe salvation is by works. और देखिए केवल एक ही भिन्नता है दोनों झुंडों में, क्योंकि कैथोलिक के विश्वास करते हैं उद्धार कर्मों के द्वारा आता है। But Protestants believe that salvation comes only by placing our faith in the Lord Jesus. और लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग इस बात को विश्वास करते हैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है। In the Catholic Bible, you will see extra books. और यदि आप कैथोलिक बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग और पुस्तकें उसमें आपको मिलेंगी। When we look in our Protestant Bibles, we don't see those extra books. और जब हम अपनी इस प्रोटेस्टेंट बाइबल में देखते हैं तो वो जो अलग किताबें जो कैथोलिक बाइबल में है वो हमें नहीं मिलती हैं। Now, a lot of Christians living in cities, they raise this question. और देखिए बहुत सारे मसीह लोग जो शहरों के अंदर में रहते हैं उन लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है। Because they interact with many Catholics. और क्योंकि उनका आमना सामना बहुत सारे कैथोलिक लोगों से होता है। So they are trying to understand what is the difference between our Bible and their Bible. और वो लोग इस बात को जानने भी चाहते हैं कि हमारी बाइबल में और उनकी बाइबल में क्या अलग है। Now, if you are from a place where there are almost no Catholics, it will not be an issue for you at all. और यदि आप ऐसी किसी जगह से आते हैं जहां पे कोई कैथोलिक है ही नहीं तो आपके लिए कोई समस्या ही नहीं है। So, how many of you here in this group are familiar with Catholics and actually have interaction with Catholics? और आप में से हमारे बीच में कितने लोग हैं जो कैथोलिक लोगों से परिचित हैं या आपका बातचीत कैथोलिक लोगों से होती है, मित्र हैं आपके या परिवार के सदस्य हैं, तो हाथ उठा के दिखा सकते हैं। That's really good. You have quite a good number of people here like that. और इस प्रकार के अच्छे गिनती में हमारे मध्य में लोग हैं। When we had the short-term college last year, और जब पिछले वर्ष इस प्रकार का बाइबल अध्ययन जब हो रहा था, some of the people did not even know that there is such a thing as Catholics and Protestants. और देखिए बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक कोई चीज भी है। But here in this group, you are familiar with this division. और Between लेकिन इस झुंड के अंदर में इस विभाजन से आप लोग परिचित हैं, ये अच्छी बात है। So let us find out what is this apocrypha. और देखिए अपोक्रिफा ये है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। We'll first look at some background information. और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें कि ये है क्या। In the time of Jeremiah and Isaiah, और यर्मिया और यशाया के समय में the people of Israel had become very sinful. और इजरायली लोग जो हैं वो बहुत भ्रष्ट हो गए। And so God said, I will punish you by taking you away as slaves to Babylon.
परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, मैं तुम्हें दंड दूंगा और बेबीलोन में तुम्हें गुलाम बनाकर भेज दूंगा। And so for 70 years, the people lived as slaves in Babylon. और 70 साल इजरायली लोग जो हैं बेबीलोन में गुलाम होकर रहे। But even when they were living over there under God's punishment, God continued to love them. और देखिए, भले ही वो गुलामी में थे, परमेश्वर के दंड की वजह से वहां थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन लोगों से प्यार करता रहा। That is why Jeremiah 29:11 is such a popular verse. और देखिए, यही कारण है कि यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन बहुत प्रसिद्ध है। In Jeremiah 29:11, the Lord says, और यिर्मयाह 29 उसके 11 में परमेश्वर यूं कहते हैं, I am not taking you over there, to harm you, to bring you evil. और मैं तुम्हें वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हारी हानि करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। I'm taking you there because you deserve the punishment. और मैं इसीलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि दंड के लायक हो। But even over there in the place of punishment, I will continue to give you a future and a hope. और उस दंड के अंदर में भी मैं तुम्हारे लिए भविष्य और आशा को बनाए रखूंगा। And so, even though they were living over there in Babylon, God continued to look after them and provide for them. और देखिए, भले ही वो बेबीलोन में गुलाम के नाई रहते थे, परमेश्वर उनकी चिंता करता रहा, उनके ऊपर अपने ध्यान को लगाए रखे। So from Babylon, some of the Jewish people, they went to Persia, some of them went to Egypt. और बेबीलोन से कुछ लोग जो हैं वो पर्सिया चले गए, फारस चले गए, कुछ लोग जो हैं मिस्र चले गए। So the Israelite people spread out in all those regions. और इजरायली लोग उस पूरे प्रांत में फैल गए थे। And then when the Persian king Cyrus came to the power, और जब फारस का राजा साइरस राज्य में आया, he gave permission to the Jewish people to go back to their homeland. और उसने यहूदी लोगों को अनुमति दिया कि वे अपने देश वापस चले जाएं। But many of the Jewish people were very comfortable in the places where they were living. और लेकिन बहुत सारे यहूदी लोग जहां रह रहे थे, बस गए थे, वो वहां पर बहुत आराम से थे। They had started businesses, they were flourishing nicely. और उन्होंने अपने अपने व्यापार शुरू कर लिए थे, वो बहुत संपन्न हो रहे थे, बढ़ रहे थे। They did not want to come back to Jerusalem. और वो लोग वापस घर वापसी नहीं करना चाहते थे। So all of these people, they continued following Yahweh in all of those other places. और ये सारे लोग जो हैं यहोवा की स्तुति आराधना और उसके पीछे इन सारे जगहों में करते तो रहे। But they lost contact with the Hebrew language. और लेकिन इब्रानी भाषा के साथ उनका जो रिश्ता था वो उन्होंने खोते चले गए। Because the Israelite people, their mother tongue was Hebrew. और देखिए, इजरायली लोगों की मातृभाषा जो है वो इब्रानी है। But when they started living in all these foreign places, they forgot Hebrew language. और लेकिन जब वो परदेशी भूमि में रहने लगे, वहां बस गए, तो वो अपनी मातृभाषा को भूलते चले गए। So they began to learn Greek in those places. और उन जगहों पर उन लोगों ने यूनानी भाषा को सीखना शुरू कर दिया। So 200 BC onwards, और देखिए 200 ईसा पूर्व के पश्चात the Jewish people who have settled in all of those places, they began to write a lot of books. और वो लोग जो यहूदी लोग इन जगहों पर बस गए थे, वो लोग कई किताबों को लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। Even the people here in Jerusalem, they were writing a lot of books. और यरूशलेम में जो इजरायली लोग थे, वो लोग भी बहुत सारी किताबों को लिखा करते थे। The time of Malachi is over by now. और अब तक जो मलाकी का समय है वो समाप्त हो चुका था। So now all the writings which are being written, और जो सारी किताबें अब तक लिखी गई थी, now these writings are all human writings. और ये सब जो लेखन थे वो मनुष्य सोच विचार के द्वारा लिखे गए थे। They are not Holy Spirit inspired writings. और ये सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचे नहीं गए थे, लिखे नहीं गए थे। So some of these books are Book of Tobit, Book of Judith. और उसमें से कुछ किताबें जो तोबित की किताबें हैं, यहूदा की किताबें हैं। So these books became very popular.
और ये किताबें जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। Um, a lot of people were reading them because the stories in these books were very interesting. और बहुत सारे लोग इनका अध्ययन किया करते थे क्योंकि इसके अंदर में जो कहानियां थी बड़ी रुचिपूर्ण थी। Also, new kinds of teachings were mentioned in these books. और उसके साथ साथ नए प्रकार की शिक्षा भी इसके अंदर में लिखा हुआ था। So somebody said, maybe we should translate all of these books also into the Greek language. और किसी ने इस प्रकार कहा कि अच्छा होगा कि इन सारी किताबों का यूनानी भाषा के अंदर में अनुवाद किया जाए। Then all the people who are living in Egypt and Persia, they also can read these books. और तो उन्होंने कहा कि जो लोग मिस्र में रहते हैं, फारस में रहते हैं, वो लोग भी इन किताबों को अध्ययन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। So a lot of translation work started into the Greek language. और उसके बाद में यूनानी भाषा के अंदर में बहुत सारी किताबों का अनुवाद कार्य शुरू हो गया। And then in 245 BC, a very important step was taken. और देखिए 245 ईसा पूर्व में एक बहुत विशेष कदम उठाया गया। Some people said different books are being translated into Greek. और किसी ने कहा कि कुछ बहुत सारी किताबें जो हैं यूनानी भाषा में अनुवाद की जा रही हैं। What about the Holy Scriptures? और पवित्र वचन के बारे में क्या है? Shouldn't we translate even the Holy Scriptures into Greek? और क्या हम लोग पवित्र वचन को यूनानी भाषा में अनुवाद नहीं करना चाहिए? So they began to translate the Old Testament into the Greek language. और उसके बाद में पुराने नियम को यूनानी भाषा के अंदर में अनुवाद करना आरंभ किया गया। It was a very good thing which they did. और देखिए ये बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने इस कार्य को किया। All the people who are living in foreign countries, और वो सारे लोग जो विदेशी भूमि में रहा करते थे, they have forgotten the Hebrew language. और वो अपनी मातृभाषा इब्रानी भूल चुके थे। So now they will be able to read the Holy Scriptures in Greek. और अब वो लोग पवित्र वचन को यूनानी भाषा में पढ़ सकते हैं। So this Greek translation was called Septuagint. और देखिए इस यूनानी अनुवाद को सेप्टुजिंट कहा गया। So the Septuagint is the Greek translation of the Holy Scriptures. और सेप्टुजिंट जो है वो पवित्र वचन का यूनानी अनुवाद है। But when they made the Septuagint, they made 3 terrible mistakes. और जब उन्होंने सेप्टुजिंट को किया तो 3 बुरी गलतियां उन्होंने कर डाली। The first mistake that they made was this. और देखिए सबसे पहले जो गलती उन्होंने किया वो ये थी, They said, we have put all the translated Old Testament books in the Septuagint. और उन्होंने कहा कि हमने पुराने नियम की सारी जो पुस्तकें हैं उसे सेप्टुजिंट में डाला है। All the 39 books of the Old Testament have been placed in the Septuagint. और पूरी की पूरी 39 किताबें जो हैं वो सेप्टुजिंट में मौजूद हैं, डाल दी गई हैं। But what about all these other popular books? और लेकिन वो क्या, उनके बारे में क्या है? जो बड़ी प्रसिद्ध किताबें हैं हमारे लोगों के द्वारा लिखी गई, उनके बारे में क्या है? Book of Tobit, Book of Sirach. और शिराश की किताब है, तोबित की किताब है। Let's put those books also inside the Septuagint. और उन्होंने कहा कि इन किताबों को भी सेप्टुजिंट में डाला जाए। So now the Septuagint is containing the Holy Scriptures. और अब देखिए सेप्टुजिंट जो है उसके अंदर में पवित्र वचन जो परमेश्वर के प्रेरणा से रचे हैं वो भी है। But you also have human writings inside the Septuagint. और उसके साथ साथ मनुष्य के द्वारा जो मनुष्य की सोच विचार के द्वारा लिखे गए हैं उनको, उन किताबों को भी अब इसमें जोड़ दिया गया है। And another mistake which they made, और एक और गलती जो उन्होंने की थी, some of these people, when they were doing the translation, they added extra words to the Septuagint scriptures. और जब ये लोग जब अनुवाद कर रहे थे यूनानी भाषा के अंदर में, तो जो अनुवादक हैं उन्होंने सेप्टुजिंट में कुछ अलग से शब्दों को भी जोड़ दिया उसमें। For example, we know the story of Esther. और उदाहरण के लिए जैसे हम एस्तर की कहानी को जानते हैं, We know that Esther, she fasts and prays. और जैसे हम जानते हैं उसकी कहानी में कि उसने प्रार्थना की और उपवास किया।
And then she goes and stands in front of the king. और उसके बाद में वो राजा के सम्मुख में जाकर खड़ी होती है। These details are there in our Old Testament. और ये जो है इसकी जानकारी हम पुराने नियम की पुस्तक में पाते हैं। But in the Septuagint, there's some additional stories added. और लेकिन अगर सेप्टुएजिंट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ एक और कहानी को उसमें जोड़ दिया गया है। It says over there that when Esther went to the king, she got so scared she fainted. और वहां पर लिखा है जब राजा के सामने एस्तर गई तो वो इतनी डर गई कि वो बेहोश ही हो गई। Now these are not details which are there in the inspired word of God. और ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वचन के अंदर में ये सब मौजूद नहीं है। In the same way, when the book of Daniel was being translated, और उसके साथ साथ जब दानियल की पुस्तक का यूनानी अनुवाद किया गया, some additional information was added. और उसमें कुछ और बाहर की जानकारी जोड़ दी गई। The three friends, they were walking around in the fire, Shadrach, Meshach and Abednego. और तीन दोष हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो आग के अंदर में चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। And over there, Abednego says one long poem prayer. और वहां पे अबेदनेगो जो है एक लंबी कविता की प्रार्थना पढ़ रहा है। That is not there in our Old Testament. और लेकिन पुराने नियम में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। So these additional things were added into the Septuagint. और ये सब बाहरी बातें जो हैं सेप्टुएजिंट में बाहर से जोड़ी गई हैं। Third mistake which was done with the Septuagint. और देखिए तीसरी गलती जो सेप्टुएजिंट के साथ में की गई है, That happened in 167 BC. और वो 167 ईसा पूर्व के अंदर में हुई। At that time, there was an evil Syrian king named Antiochus IV. और देखिए एक दुष्ट सीरियन राजा हुआ करता था, Named Antiochus. और उसका नाम एंटियोकस था। That man, he came to Jerusalem and he took over the Jerusalem temple. और वो यरूशलेम में आता है और यरूशलेम के अंदर मंदिर पे कब्जा कर लेता है। And he defiles the temple by sacrificing a pig. और वो उस मंदिर को एक सूअर की बलि चढ़ाकर अशुद्ध कर देता है। So at that time, there was a priestly family, a family of priests. और उस समय पर एक याजक का परिवार उधर हुआ करता था। They were known as the Maccabees. और वो मैकबीस करके जाने जाते थे। So these Maccabees, they decided that, the name of Yahweh is being defiled. और इस मैकबीस झुंड ने निर्णय किया कि हमारे यहोवा का नाम जो है उसे दूषित किया गया है। So we will fight against this evil king and defeat him. और हम इस दुष्ट राजा के विरोध में बलवा करके से लड़कर इसको हराएंगे। So they were in fact able to finally defeat the king. और उन्होंने अंत में उस राजा को हरा दिया। So all the things which they did, और वो सारी बातें जो उन मैकबीज झुंड के लोगों ने किया, all those historical details were written in 2 books. और वो सारा ऐतिहासिक घटनाओं को 2 किताबों के अंदर में वर्णित किया गया, लिखा गया है। First Maccabees and second Maccabees. और पहला मैकबीज, दूसरा मैकबीज। So these 2 books were also included in the Septuagint. और ये दोनों किताबों को भी सेप्टुएजिंट में जोड़ दिया गया है। This created a lot of confusion in the minds of the people. और इन सब किताबों ने, इन सारी गलतियों ने लोगों के मन के अंदर में बहुत सारी गड़बड़ियों को उत्पन्न कर दिया है। Now the people don't know which are the canonical books, अब लोगों को पता नहीं है कि कैनन किताबें कौन सी हैं, which are the human books. और वो फिर जो मानव रचित पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं। So because of this, at that time the rabbis in Jerusalem, they came up with a declaration. और उस समय में यरूशलेम के अंदर में जो रब्बी लोग कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे व्यवस्था के, उन लोगों ने एक घोषणा को किया। So in those days, the teachers were called rabbis. और उन दिनों में जो शिक्षक होते थे उन्हें रब्बी कहकर पुकारा जाता था। That's why even Jesus was called a rabbi. और इसीलिए यीशु मसीह को भी कई स्थानों पर रब्बी कहकर पुकारा गया है। So in one of the rabbinical writings, this is what it says. और देखिए रब्बियों के लेख में एक जगह पे इस प्रकार से लिखा गया, कहा गया है। It says over there, और वहां ऐसा कहा है,
after the prophets Haggai, Zechariah, Malachi had died, और जब हगाई, मलाकी और जकरिया की मौत हो गई the Holy Spirit departed from Israel. और पवित्र आत्मा इज़राइल से दूर चला गया. So, in other words, after the time of okay, so at 10:20 there's a break, is it? Or is it 10:25? 10:20 there is a break. All right, so all right, then in that case we'll continue after the break. और ब्रेक के बाद में हम फिर से आएंगे. Okay.